मैं माधवी राघव ऑर्गेनाइजर्स की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के साथ ही महिलाओं को मजबूती देने के दिशा में काम करने वाली संस्था है। With the aim of keeping the richness of India's multilingual heritage alive, the power of words knows no boundaries. And tonight, within the walls of Taj Chandigarh, we are not just celebrating languages, we are fostering a deeper understanding and appreciation for the nuances that make our cultural mosaic vibrant and unique. The initiative is in association with Rekta Foundation, hospitality partner Taj Chandigarh, and Ehsaas Women of Chandigarh. This event is supported by patron Sri Cement Limited as their CSR initiative. Today, we have with us a very versatile author and eminent Urdu poet, Azra Naqvi, here with us. In conversation with her will be Shelley Witch, a renowned name in Urdu poetry herself. Before we start the conversation, as a customary ritual, allow me to introduce Prabha Khaitan Foundation in a few words. The Prabha Khaitan Foundation was established in 1987 in Kolkata with the objective of upholding its late founder Dr. Prabha Khaitan's vision and aspiration to selflessly serve and contribute towards the betterment of society. Dr. Prabha Khaitan was a noted entrepreneur who was the first female president of the Kolkata Chamber of Commerce. She was a philanthropist, author, poet, entrepreneur, and campaigner for women's cause, educational and cultural institutions, and a promoter of Indian art and heritage. The foundation continuously strives to connect readers to the literary creations of the authors and poets and showcases talented artists, musicians, dancers through praiseworthy literary and cultural initiatives. Some literary events for authors meets, book launches, literature fest, panel discussions are and Authors Afternoon, the Right Circle, Loves Akhar Kitab. Under the Cultural and Heritage Initiatives, we have Sur Aur Saaz, TRT, Ek Mulaqat, where we host artists. Rahat Karuna Sahyog fall under the social welfare and Muskan under child development. The essence of the foundation is amalgamation of the multicultural diversities of India. The philosophy of unity and diversity has been inspiring the foundation to connect thinkers, writers, poets, artists, intellectuals, and cultural enthusiasts, and to curate boutique initiatives, events, and festivals that showcase the literary and cultural assets of India. We align with UNESCO's view that cultural development has the potential to promote sustainable development in marginalized sections of the society. The three-time Grammy Award winner Ricky Cage, the man behind the Prabha Khaitan Foundation's anthem and signature caller tune of the foundation, has curated 12 amazing musical pieces to score across video invites of events and social media platforms, as well as for pan-India and overseas communications. Highlighting the importance of music as an indispensable art form holding a paramount significance in our lives. PKF introduces the music of the month for March, Mahadev, a tribute to Lord Shiva, his might, strength, and benevolence. Allow me to introduce today's guest author, Azra Naqvi. Azra Naqvi, a teacher, writer, poet, and social worker, holds an MSc MPhil diploma in education and a certificate in French language. She has also worked as an anchor, community activist, kindergarten teacher in Montreal, coordinator of the South Asia Theatre Group, Teesri Dunya, and a special care center for disabled children in Riyadh. She has also associated with All India Radio's Urdu service and Urdu Majlis, Urdu News in KSA and the English daily Saudi Gazette. Currently affiliated with Rekta Foundation, her published works span across poetry, stories, articles, and translations, including titles like Dil Ke Mausam, Angan Jab Pradesh Hua, Jahan Bana Le Apna Shaman, Sher Kitab Yadein, and many more. In conversation with her today, we have Shelley Witch.
Shelley Wage is an author, poet, and an active presenter in All India Radio Chandigarh for 22 years. Currently, she is presenting her stories in air under the program Suhana Safar, Akashvani Ke Sang. And just to add that Shelley Wage has written 6 books, and out of that 3 of them are award-winning books. Congratulations for that. So now I would request you all to turn your phones to silent mode, sit back and be a part of this beautiful talk. Without further ado, let the conversation begin. Over to you, Shelley ji. Thank you so much, Madhvi ji. I think ये एक खुशनसीबी है मेरी कि मैंने आज अज़रा मैम के साथ कुछ गुफ्तगू करनी है, और इस गुफ्तगू के दौरान बहुत थोड़े समय में हमें टाइम बाउंड किया गया है, तो उस थोड़े से समय में हम इनसे बहुत कुछ निकालने वाले हैं। मैंने कल जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई या मेरी इनसे बात हुई तो मैंने सोचा कि अगर मैं लिखती हूँ तो इसका फ़ायदा थोड़ा सा मुझे उठा लेना चाहिए और अज़रा मैम के बारे में कुछ लिख लेना चाहिए। सो अज़रा मैम के बारे में लिखना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर था। सो ये मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने फिर भी लिखा। अरे वाह। सो इसी की उम्मीद इनके बारे में मैं ये कहूँगी, इस खुली किताब में फ़कत तहरीर नहीं दास्तां है। इस खुली किताब में फ़कत तहरीर नहीं दास्तां है। ये शख्सियत खुद में ही एक कारवां है। तो आदाब, लफ्ज़ में लफ्ज़ों का कारोबार होगा। अज़रा जी, अब मैं आती हूँ आपके पास। आप एजुकेटर, शायरा, सोशल वर्कर, ऑथर, MSc किया, MPhil किया, उसके बाद यू गॉट सर्टिफिकेट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, आकाशवाणी में एंकर भी रही हैं, होस्ट करती रही प्रोग्राम्स, अनाउंसर भी रही हैं। तो यू हैव रिटन आर्टिकल्स, स्टोरीज, बुक्स, सो मेनी थिंग्स यू हैव डन। मेरा प्रश्न जो है वो आपके पास ये है कि इतनी सी जिंदगी में इतना कुछ करने के लिए हसरत काम आई, इंस्पिरेशन या फिर हुनर? इंस्पिरेशन। आई गॉट दिस। मुझे जो कुछ भी मिला है अपने माँ बाप से मिला है। ये बात सब कहते हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है कि मुझे मेरे फादर जो थे, अगर मैं उन पे बोलना शुरू करूँगी तो घंटा गुजरेगा। मैं बहुत छोटे 2 लफ्ज़ों में कहती हूँ कि वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और यहाँ पे दंगे हो रहे थे, तो वो पीस का काम करते थे सुभद्रा जोशी के साथ, और लोगों को मतलब इस्टेब्लिश करना चाहते थे, रिहेबिलिटेट करते थे। उसके बाद भी वो सोशल वर्कर रहे और उन्होंने बच्चों में बहुत काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया, और वो हमेशा उन्होंने मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी जो थी मैंने अपने फादर से ली। और शायरी, क्योंकि मेरी माँ शायर थी और मेरे ख़ानदान में बहुत लिखने वाले लोग हैं, बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं लोगों ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे ग्रैंडफादर, नाना ने, और डॉक्टर आबिद हुसैन। तो वो मेरे साथ ये था कि ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजारी जाती है। तो ये इंस्पिरेशन, ये मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे माहौल का कमाल है जो मैंने सब कुछ किया। बहुत खूबसूरत। स्पेशली माय फादर फैसल नकवी साहब जी। और ये जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपको लिखने का शौक कब हुआ, तो वो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। तो पहली बार जो आपने कलम पकड़ी और पहली जो तहरीर थी आपकी, वो क्या? देखो, कलम पकड़ने से पहले बस तुकबंदियाँ करती रहती थी बचपन से मैं। देखिए, मेरी अम्मा जो थी, मुझे सबकी अम्माएं लोरियाँ सुनाती हैं, लेकिन वो अपने आप क्रिएट करके लोरी हमें सुनाती थी, और अच्छी अच्छी नज़में बच्चों के लिए जो होती थी वो सुनाती थी। तो हमें शायरी हमारे अंदर रची बसी थी। तो हम बचपन से हमें लिखना तो सीखा ही नहीं था, सिर्फ तुकबंदी करते रहते थे। कोई भी बात ऐसे बहर में कह दी। अब बात ये होती है कि मीटर शायरी क्या है। सबके दिल में अच्छे अच्छे जज्बात उभरते हैं, नई नई बातें आती हैं। जब आप उसको किसी खास मीटर में, किसी खास फॉर्म में लिखते हैं तो वो शायरी हो जाती है। तो वो मेरे बचपन से मुझे पता था। मैं ऐसी जिसमें कहते ना बकबक करती रहती थी, तो बस वही था कि बोले कुछ, इसको इधर से राइमिंग वर्ड लिया, उधर से। तो मुझे नहीं पता कि भाई मैंने कब लिखी। हाँ, एक
अब आप कहेंगे पहली नज्म कब लिखी मैंने, सही, तो वो ये था कि मैं बीएससी का मेरा पेपर था और मुझे बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, तो मैंने एक नज्म लिखी थी और वो बस 5 मिनट में लिख ली थी मैंने, बहुत रात का वक्त था, और तो वो मेरी समझिए पहली नज्म थी। खूबसूरत। ये एक शुरुआत थी आपकी। वैसे कहते हैं ना कि जब जो बहती नदी होती है तो उसमें उछाल अगर लाना हो तो उसमें किसी पत्थर की जरूरत पड़ती है, वहां से नदी को उछाल मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप तो समंदर हैं कि समंदर तो जैसे लहरें ठाठे मारता है वैसे ही हर लहर में आपके मेरे ख्याल में लफ्ज निकलते होंगे। हाँ, लफ्ज मुझ में बसे हुए हैं बचपन से, क्योंकि बात सब शब्दों की थी कि हमारे घर में हमारी अम्मी कोई गलत लफ्ज बोलो तो फौरन ये कहती थी कि अरे ये क्या बोल रही हो, ऐसे बोलो। हमारे खानदान में बहुत ही इस मामले में थोड़े थोड़े शॉविनिस्ट भी थे लोग, अरे गलती नहीं कहते गलती कहते हैं। तो अब ये सब बातें जब आप बचपन से सीखेंगी तो लफ्जों से प्यार हो जाएगा, और लफ्ज ही हैं जो आपको एक सब दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से मिलाते हैं। तो सच्ची में एक दरिया था और मैं एक छोटी कश्ती की तरह बहती चली गई, और अच्छी हवा भी कभी मुखालिफ नहीं हुई जी, जिंदगी से कभी मुखालिफ हवा नहीं हुई। तो आप ही ने आई थिंक कहा है कि अजरा बना लो शौक को अपने जुनून की आग, एक बार जो बुझेगी तो जलाया न जाएगा। हाँ, ये मेरा शेर है। तो लिखने का शौक तो होता है जी, मैं अफसाने भी लिखती थी छोटी सी से, और स्कूल में जब भी डिबेट होती थी, राइटिंग कंपटीशन, तो हमेशा लिखा करती थी, ड्रामे किया करती थी। तो ये सब तो बचपन से। आपके हिसाब से ये जो हुनर है ये खुदा की देन है या फिर इसको डेवलप करके इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? डेवलप भी किया जा सकता है। ये तो नहीं कि आप पैदा हुए भी, अब जैसे बहरे हैं, शायरी है, कुछ लोग जैसे म्यूजिक है, कुछ लोगों ने म्यूजिक नहीं सीखी होती लेकिन वो सुरीले होते हैं, सारे सुर उनमें होते हैं। और ऐसे ही नज़्मों का, शायरी का है कि आपको लफ्ज़ों से खेलना आता हो, लफ्ज़ से कोई और मानी निकाले, उसको अच्छी तरह यूज़ करे, और वो मीटर आपके अंदर हो जो शायरी सुनने से आता है। अच्छी शायरी सुनने से, अच्छी म्यूज़िक सुनने से आपके कान उसके आदी हो जाते हैं। तो ये तो खुदा की देन है। लेकिन फिर जब आप उस्तादों का कलाम पढ़ते हैं तो उसमें अच्छाई पैदा होती है, उसमें खूबी पैदा होती है, तो और उसको हमेशा बढ़ता ही रहता है। अलग अलग वक्त में आप अलग अलग तरह से काम करते हैं। जी, मैं जब आपकी शायरी पढ़ रही थी तो उसमें एक कुछ पंक्तियां ऐसे आई, उसे अब कुछ ना समझाओ ना कुछ याद दिलाओ, तुम्हारी क्या समझ में आएगा, मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ। तो इसके पीछे कोई जज्बा, वो जिसने आपको छुआ, और ऐसे जज्बातों भरे शब्द आपने उकेर दिए, इसके पीछे की कहानी जरूर बताइए। सुनाऊंगी और आपको ये नज़्म भी सुनाऊंगी जी। मैंने आपकी फरमाइश पे इसको निकाल के रखा है। जस्ट 1 मिनट। जी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि किसी चीज से संबंधित थी, रिलेटेड थी। जी, ये नज़्म, सॉरी, ये नज़्म जो है कहीं ना कहीं आप सबके करीब होगी। मैं आप सबसे पहले ये दुखी नज़्म नहीं सुनाना चाह रही थी, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है। अल्जाइमर के कितने मरीज आपने देखे होंगे, मेरी माँ तो नहीं थी लेकिन बहुत सी माँओं को और बेटों को उनसे जूझते देखा है। तो एक अल्जाइमर की मरीज लेडी की तरफ से ये नज़्म है, मैं सुनाती हूँ। मुझे अब कुछ न समझाओ, मुझे अब कुछ न समझाओ, न कुछ भी याद दिलवाओ, तुम्हारी क्या समझ में आएगा, मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ, मैं कितनी मुज़महिल हूँ, मुज़महिल थकी हुई, मैं कितनी मुज़महिल हूँ, खोई खोई हूँ, दृष्टि से मुझे समझाओ मत, दृष्टि मतलब सख्ती से, दृष्टि से मुझे समझाओ मत, मैं कौन हूँ, तुमसे मेरा रिश्ता है क्या, ये कौन सा घर है, कहाँ है सब, मैं बेबस हूँ, मुझे कुछ याद है और बाकी मंजर धुंधले धुंधले हैं। लड़कपन में कभी हमजोलियों के साथ बातें करती रहती हूँ, कभी भाई बहन के साथ बचपन खेलता है घर के आंगन में, कभी दुल्हन बनी मैं खुशबुओं में डूबी रहती हूँ। मुझे समझाओ मत, मुझे समझाओ मत, ये सारा धोखा है, मुझे डांटो नहीं, मैं क्या करूँ बोलो, मेरे बस में नहीं है कुछ, मुझे समझाओ मत, बहलाओ मेरा हाथ थामो, प्यार से माथे पे बोसा दो, यही काफ़ी है मेरे वास्ते, तुम पास हो मेरे, मुझे समझाओ मत, आराम करने दो। बहुत अच्छे, बहुत
दिल को छूने वाली। बाकी मैं अभी भी पढ़ते में रोगी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है और फिर बच्चों को देखा है कि अम्मी आप क्या कह रही हैं, हम नहीं कुछ नहीं करोगे, मुझे नहीं पता। बहुत खूबसूरत। आप ना केवल इंडिया में बल्कि आपने बहुत बाहर भी रही हैं, विदेशों में जाती रही हैं, और आपने वुमेन एम्पावरमेंट, उनके इश्यूज के ऊपर, राइट्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब इश्क पर कम लेकिन इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, और इस मुद्दे पर भी मैं बाद में आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हर देश में जब गई हैं तो औरतों के हालात, कौन सा देश ऐसा था जिसमें औरतों के हालात आपको बदतर लगे और कहाँ की औरतें आपको खुशखुर्रम लगी? देखिए, पूरे दुनिया में औरतें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में परेशान ही रहती हैं। उनको हमेशा एक संतुलन चाहिए जिंदगी में। औरत के सोचने का अंदाज, औरत के महसूस करने का अंदाज अलग होता है। अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है उसको, क्योंकि कनाडा में भी कोई लड़कियां थी, औरतें थी। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तानियों में मिलती थी, तो सबसे सोशल वर्क में थी, तो वो भी एक घर बसाना चाहती थी, वो भी एक स्टेबल जिंदगी चाहती हैं। और ठीक है, वहाँ के हालात बेहतर है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देती है, मर्द घर में काम भी करते हैं, लेकिन अक्सर लड़कियों को मैंने ये भी देखा है कि वो सिंगल मदर है, शादी हुई, लिव इन रिलेशनशिप है, और वो चले गए अपने रास्ते, और वो जो है वो अपने बच्चे पाल रही है, नौकरी कर रही है। तो वहाँ के मसले और थे, हिंदुस्तान के मसले और थे। सऊदी अरेबिया में भी मैंने बहुत काम किया, उनकी कहानियों की एक किताब थी सऊदी औरतों की लिखी हुई, एक एंथोलॉजी इंग्लिश में, उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम भी समझने, हालांकि हम देखते थे कि भाई बुर्का पहने औरत है और उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, उनकी चीज़ें भी देखी कि वो भी भाई फेमिनिस्ट अंदाज से लिखती थी। तो औरतें जो है ना, वो सब जगह की बहुत स्पेशल मखलूक है, एंड आई ऑलवेज फील वेरी क्लोज टू देम, कहीं से भी हो। तो ये कि कहाँ ज़्यादा बेहतर है, यकीनन वेस्ट में ये है कि वहाँ पर बहुत सपोर्ट है औरतों को। अगर घर में कोई वाइफ बैटरिंग है या कुछ है तो सेंटर्स हैं, वहाँ जा सकती है और वहाँ अपना कुछ बंद कर सकती हैं। लेकिन तब भी हर औरत चाहती है अपना घर, अपना सुकून, अपने बच्चे। तो ये तो दुनिया, क्योंकि भारत में, इंडिया में तो फैमिलीज को रेस करना, जॉइंट फैमिलीज में रहना हमारी तो परंपरा। हमारा कुछ और मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ की जो रिवायतें हैं, जो हमारी परंपरा है, अब बहुत मॉडर्न भी हो गई है लड़कियां, लेकिन वो उनके अंदर रची बसी है। वो अगर अपना एफर्ट खुद जानबूझ के ना भी करे, मगर वो उनके दिमाग में बसी हुई है। वो आजकल कितनी स्मार्ट लड़कियां, हमारी सब बच्चियां हैं और एक से एक प्रोफेशनल है, काम कर रही हैं, लेकिन एक प्रेशर उनके ऊपर रहता है। प्रेशर रहता है कि एक तो पहले शादी क्यों नहीं की, और फिर वो अपनी पसंद से करो कि ढूंढ के करो, तो वो बहुत, और अपना रिज्यूमे डालो उनके जो साइट्स हैं उसके ऊपर, विच आई फाइंड वेरी रिडिकुलस, कि अपना रिज्यूमे डालो, लोग आके देखें और आपको रिजेक्ट करें। बहरहाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत तब्दीली आई है। इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि बहुत औरतें, देखिए सारे अच्छे काम तो आप ही लोग करेंगे ना, ये जो है आपका एहसास जो है, तो कितना काम कर रही हैं, सारे अच्छे काम, छोटे छोटे जो निटी ग्रिटी है वो औरतें ही देखती हैं सब चीजें, और दुनिया का संतुलन बनाए रखती हैं। अभी उन्होंने पिछले एक सेशन में एक साहब ने, मर्द यही पूछ सकता है कि औरत का तसादुम यानी क्लैश होता है, उसको कैसे, मैंने कहा नहीं, औरत का प्रॉब्लम तसादुम क्लैश नहीं है, बैलेंस है जी। उसको बैलेंस किस तरह करती है अपने इमोशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को, वो है, और वो उसमें बहुत कामयाब है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आजकल जिसको आप देखते हैं हर दूसरे, मैं थोड़ा सा फिर नज़्म और गज़ल की तरफ चलूंगी, लिखने के बहुत शौकीन हैं, कुछ शायर हैं, कुछ शायर नहीं भी हैं। जो शायर नहीं है वो भी शायरी करते हैं, अब इधर से लफ्ज उठाया, उधर से उठाया, और अपनी एक शायरी रच बसती है, फेसबुक शायरी जी। तो अब गज़ल भी लिखते हैं, नज़्म भी लिखते हैं, लेकिन फर्क नहीं पता होता गज़ल क्या है और नज़्म क्या है। अरे गज़ल, हमारे रेफ्ता में तो लोग आके गज़ल लिखना सीख रहे हैं। एक ऐप बनाया गया है कि उस पे जो आपने लिखा है वो गज़ल पे पूरा उतरता है कि नहीं, काफिया सही है कि नहीं, रदीफ है कि नहीं, उसका मीटर सही है कि नहीं। एक्चुअली गज़ल जो है वो एक ऐसी जॉनर है जो आई है अरब से, फारसी में भी आई, फारसी से भी हमारे आई, कि जिसका एक खास बहुत से मीटर्स है।
जो अरब में ही तय हुए थे। कोई 64 है थे, कोई खलील, उन्होंने बनाए थे, आज तक वही मीटर है। लेकिन अब गज़लें हिंदी छंदों में भी कही जा रही है। एक तो मीटर होता है इसके, और हर गज़ल में कुछ शेर होते हैं, एटलीस्ट 5 शेर। एक शेर 2 मिसरों से बनता है, जैसे नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, अभी तो अधूरी बात हुई ना। और दूसरे मिसरे में कहा पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब शराब सी है हर उसमें शेर में आएगा, सेकंड वाले स्टैंजा उसमें लाइन में, और आफिया वो तो आप जानते हैं राइमिंग वर्ड है। तो इसमें मीटर और इसका जो ये फॉर्मेट है वो गज़ल है, वो गज़ल। अच्छा, गज़ल में एक शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है, ये बात होगी ना, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अच्छा, नज़्म जैसे कोई पोएम होती है, उसका एक शीर्षक होता है और उसमें आप एक कोई ख्याल डेवलप करते हैं, पूरी एक बात उसमें कही जाती है, उसकी खूबसूरती अलग है और गज़ल की। तो उसमें राइमिंग की काफी की जरूरत नहीं होती। नहीं, नज़्में जो है ना, अब आजकल प्रोज पोइट्री है, कोई कुछ भी लिख रहा है तो वो पोइट हो गया। मेरी सॉरी अगर मैं शायद पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रोज पोइट्री को पोइट्री नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो पोइट्री में वो रिदम तो होना चाहिए ना, जो आपको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो वो नज़्मों में भी, मेरी भी नज़्में हैं, वो ब्लैंक वर्ड्स में हैं, वो फ्री फ्लोइंग है, लेकिन उसमें भी एक मीटर पूरा शुरू से चलता रहता है। उसमें एक मिसरा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, बट दैट रिदम इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। जी। तो एक गजल है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने उसको पढ़ा, लेकिन उसका एक ही पढ़ूंगी मैं, बाकी आप सारी आप सुनाएंगे। आई होप मेरे पास याद हो मुझे। आपको याद है? अच्छा। अब की बार जो घर आना तो सारे एल्बम ले आना, अब की बार जो घर आना तो सारे एल्बम ले आना, वक्त की दीमक लग जाती है यादों की अलमारी में। ब्यूटीफुल जी, ये गजल में भी बहुत मैं खुशी है कि मशहूर है और अक्सर लोग इसके कुछ गजल, तो ये मैं सुनाती हूँ कि कैसे कैसे इसमें औरत की आवाज़ कहीं ना कहीं आई जाती है मेरे यहाँ, लेकिन मेरा सारे समाज से सरोकार है, तो इस गजल में वो सब कुछ है। कैसे कैसे सॉन्ग रचाए। अच्छा, एक बात और कह दूँ लोग कि गजल में जरूरी नहीं कि मुश्किल मुश्किल उर्दू के वर्ड आए, फारसी में, जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, जो हमारी ज़बान है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। उर्दू मुझे बहुत अच्छी आती है। तो ये कैसे कैसे सॉन्ग रचाए हमने दुनियादारी में, यूं ही सारी उम्र गंवा दी औरों की दिलदारी में। और हम भी कितने सादा दिल हैं, हम भी कितने सादा दिल हैं, सीधी सच्ची बात करें, लोगों ने क्या क्या कह डाला लहजों की तहदारी में। बहुत। और हम सब कभी कभी महसूस करते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कि जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या, कुढ़ने का लफ्ज़ आमतौर पे बोलते हैं, जलना नहीं। जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या, कुछ बेले के फूल उगाए आंगन की फुलवारी में। बहुत खूबसूरत। आंगन की फुलवारी में। और हम हमेशा अपने हमारे बच्चों को भी कहते हैं कि पढ़ो और आगे के लिए पढ़ो और तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। और लोग बेचारे मिडिल ईस्ट जाते हैं काम करने वाले, दूसरे मुल्कों में कमाने के लिए, कि आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, हाल को, प्रेजेंट को, हाल को दफना देते हैं हम जीने की तैयारी में, जीने की तैयारी में। और कहते हैं कई दिनों से जिस्मों जां पर एक बेकैफी छाई है, कई दिनों से जिस्मों जां पर एक बेकैफी छाई है, गुजर न जाए रात सुनाओ कोई गजल दरबारी में। रात का राग है, कोई गजल दरबारी में। और तुम भी उन बीते बरसों की कोई निशानी ले आना, तुम भी उन बीते बरसों की कोई निशानी ले आना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी उसी बसंती साड़ी में, उसी बसंती साड़ी में। और अब की बार जो घर आना नहीं, अब की बार जो घर जाना, ये मैं बहुत साल बाहर रही हूँ, बहुत साल, 30 साल,
कनाडा में, सऊदी अरब में, यहाँ हर साल आते थे, हिंदुस्तान आते थे, यादें रिवाइव करने, सब कुछ होता था। तो ये शेर उसी का है कि सबकी आवाज़ है, सब अपने देश से बाहर रहने वालों की, कि अब की बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, अब के बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, वक्त की दीमक लग जाती है यादों की अलमारी में। बहुत शुक्रिया। हीरे चुनकर लाए हैं आप। जी, बहुत शुक्रिया। अब आपने नज्म, गजल, शेर सब कहा, और आर्टिकल्स लिखने के साथ जो आपने कहानियां लिखी, उसमें मुझे थोड़ा सा, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे उर्दू आती नहीं, देवनागरी में नहीं अभी हो जी अभी हो नहीं पाई, तो मुझे उसका थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें बोगन विला की ओट से, तो ये तो बड़ा खूबसूरत सा नाम और नाम अच्छा उन्वान दिया है, आपने। नाम तो खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे कूड़े का ढेर है। पूछिए क्यों? ये एनवायरनमेंट के बारे में, इसमें समझिए मेरी आप बीती है, मेरे घर का किस्सा है। अलीगढ़ को मैंने बेस बनाया है। अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी टाउन था, साफ सुथरा सा, कोठियाँ थी खूबसूरत, साफ सुथरा। हमारे अब्बा एक मिडिल क्लास आदमी थे, उन सस्ती ज़मीन होती थी तो ज़मीन से खुला अपना घर बना लिया, लॉन बना लिया। और अब जब वो हाई राइजेस हो रही हैं, हाई राइजेस बन रही हैं, वो टूट रही हैं कोठियाँ, जो शहरों के हालांकि स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, कूड़े के ढेर हैं वहाँ पे, कूड़ा नहीं उठता है। तो वो कहानी एक ऐसे प्रोफेसर की है कि जिसका अब्बा का पुराना घर था और उसने लॉन बनाता था, बहुत खूबसूरत होता था, उसको अच्छा लगता था कि मेरा लॉन हो, तो उसने बोगनवेलिया की दीवार सी खड़ी कर दी थी। लेकिन जब वो ऊपर की मंजिल से देखता था तो सामने एक तिकोना सा हिस्सा था जिसमें सारी दुनिया का पॉलिथीन और गंद होती थी। तो वो पूरे उस, न सिर्फ ये कूड़ा का जिक्र नहीं है, बदलते हुए जो शहर हैं हमारे, उसका जिक्र है इसके अंदर बोगनवेलिया के ओट से। तो वो कहता है कि मैंने बोगनवेलिया की ओट पूरी अपनी चारदीवारी में यूं लगाई थी कि ताकि वो गंदा कूड़ा जो है सुबह सुबह मेरी आंखों के सामने ना आए, मगर कमबख्त आज मेरी नजर पड़ी गई उस पे। एंड देन ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि कैसे है, और सब चीज टूट गई। तो ये कहानी, नाम तो लगता है कि कोई बहुत ही खूबसूरत लेकिन ये एनवायरनमेंट मेरे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और आंगन जब परदेस हुआ कहानी संग्रह है, आई थिंक आपका ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। हाँ, कलेक्शन स्टोरी है आंगन, क्योंकि मैंने कनाडा में लिखी थी कि वहाँ बहुत से इमिग्रेंट्स थे, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, यहाँ के, बाहर के रेफ्यूजीज थे। तो उनकी जो माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, और एक मेरी एक कहानी थी 2 गज जमीन, वो भी देखिए, कोई कहानी में एक कैरेक्टर लेके नहीं लिखा जाता, बहुत से कैरेक्टर्स को मिला के आप एक लिखते हो। था मेरी बुआ का कैरेक्टर जो मजबूरी में जब विभाजन हुआ था तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, हम में से कोई नहीं गया था, उनका निकाह हो गया था, तो अब वो तलाक लेना तो बहुत बुरी बात थी। पहले तो वो रोती धोती चली गई थी, बहुत मिस करती थी। फिर वक्त का क्या करना हुआ, वो कनाडा में मुझे मिली, अपने बच्चों के साथ वहाँ आई हुई थी। तो उनको अच्छे बच्चे, वेल सेटल घर है, बीबी भी जॉब कर रही है, वो मॉर्गेज देना है तो बीबी भी अपना काम कर रही है, वो अकेली घर में रहती, सोचती हैं, ये देखती हैं अकेलापन, वो तो अपना है ही उनका। एक दिन उनको सोचती, किसी का इंतकाल की बात हुई तो उनके वो दफन कहाँ होंगे, तो बड़ी परेशान थी। अब तो लोगों ने अपने बना लिए कब्रिस्तान और क्रेमेटोरियम्स वगैरह, बहुत लोग हैं। तो वो पूछती हैं अपने, उनको रात भर नींद नहीं आती, ख्वाब में वो अपना इंडिया वाला घर देखती हैं अपने बाप का, कि वहाँ के उनकी माँ की कब्र के ऊपर कोई अगरबत्ती जल रही है कि नहीं, मोमबत्ती जल रही है कि नहीं। तो फिर वो अपने बेटे से पूछती है, एक उनका बेटा सऊदी अरब में कमा रहा होता है, कनाडा में, कि वो बोले कि ये बताओ, किसी ने कहा कि हाँ बहुत से लोग तो अपनी लाश वहाँ इंडिया वगैरह ले जाते हैं, पाकिस्तान, वहाँ दफन करते हैं। तो अपने बेटे से कहती हैं सुबह उठ के, ये बताओ कि इसमें पाकिस्तान लाश ले जाने में कितने पैसे लगेंगे। तो उस ज़माने में मैंने रिसर्च करके मालूम किया था, उसने कहा $8-9 हज़ार लगेंगे। तो वो पूछते हैं जी, और वो अपने बेटे से पूछती है पास सऊदी अरब वाले से, तेरे पास $8-9 हज़ार होंगे? बोले अम्मा तुम्हें ये पैसे रुपए कितने इंडियन रुपी बनते हैं, कैसे, क्या, क्यों तुम्हें जरूरत है? तो बोले कि अच्छा क्या लाश ले जाना इंडिया आसान होगा, तो इंडिया ही ले जाओ। तो वो माइग्रेशन था, मतलब इतनी माइग्रेशन इतना सफाक था, इतना क्रूअल था कि लोगों के दिलों से वो मिटता नहीं है किसी तरह से। उनके मन में अभी यहाँ का माइग्रेशन था,
और वहाँ से तो ये प्रॉब्लम भी थे। और उस वो जो मेरा संग्रह था उसमें ये भी थे कि वो जो वहाँ जाके लड़के शादियाँ कर लेते हैं, कैनेडियन लड़कियों को, जैसे मैंने कहा कि उनके भी प्रॉब्लम थे, वो शादी भी कर लेते, सिर्फ पेपर मैरिज नहीं वैसे भी कर लेते थे। और वो लड़कियां अपना तन मन धन मार देती थी, कपड़े पहन रही हैं, बिरयानी पकाना सीख रही हैं और ये कर रही हैं, और वो छोड़ के चले जाते थे। कई दोस्तें मेरी थी, तो ऐसा नहीं था कि उनके दिल में वो जज्बात नहीं थे। तो बहुत सी कहानियां हैं ऐसी। आपने कहानी, नज्म, शायरी, गजल सब लिख दिया जी। तो सबसे ज्यादा जिसमें आप रच बस गई, आप खो गई, ऐसा क्या था? नज्म? मुझे नज्म मैं नज़में कहती हूँ, क्योंकि मैं कोई शायरी जैसे आजकल मशायरों में हो रही है कि कुछ वर्ड्स हैं कि विसाल है तो हिज्र है तो इश्क है, ये वो घूम फिर के वही इश्क सबको होता है। इश्क तो एक बहुत ही भारी लफ्ज़ है, वो सिर्फ आज की शायरी वाला नहीं है। इश्क आपको वो जो भगवान वाला भक्ति वाला भी इश्क होता है, और इश्क किसी चीज़ का जुनून को भी कहते हैं कि अगर आपको सोशल वर्क है तो आपको उससे इश्क है। तो इश्क मोहब्बत की शायरी भी टीनेजर्स करते हैं, हमने भी की है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कि नज़्म में, क्योंकि मेरा सरोकार, चाहे मैं नज़्म लिखूं चाहे मैं कुछ भी लिखूं, लोग हैं। एक बहुत बारबारा स्ट्राइसन का गाना है कि पीपल हु लाइक पीपल आर द लकीएस्ट पीपल। तो मुझे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और जन सरोकार, जी, दुनिया के सरोकार के ऊपर मैं नज़में लिखती हूँ। कभी कोई चीज़ मुझे ट्रिगर कर जाती है, कभी कोई बात, कोई चीज़, तो इस तरह गज़लें भी कह लेती हूँ उसी में। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में जीती हूँ, मेरे अशार में आसिब है गुजरे ज़मानों की। ये तो मैं जरूर सुनूंगी। हाँ, ये नज़्म मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको सुनाती भी। और मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी है, इसमें वाकई में जादू है। देखिए, इतने में नज़्म सुनती हूँ, एक मेरी आवाज़ तो है ना, एक इसमें एक लफ्ज़ है मनियातूर, आप सब जानते हैं जी। एक मिनट, मैं नज़्म निकाल हाँ जी, ताकि मैं कहीं बीच में अटकूँ ना जी। और तो इसमें एक लफ्ज़ है मनियातूर। मनियातूर मिनिएचर पेंटिंग्स को कहते हैं फारसी में। तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था, और आप जानते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग में दुनिया बसी हुई होती है जी, कितनी बारीकी क्या क्या बातें बता देते हैं। तो उसमें ये है, और कुछ थोड़े उर्दू के मुश्किल लफ्ज़ है, मैं बोल दूँगी। उन्हें माजी अतीत, उन्हें मुझसे शिकायत है जी, उन्हें मुझसे शिकायत है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरा इफेक्ट है। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में जीती हूँ, मेरे अशार में आसेब हैं गुजरे ज़मानों के। वो कहते हैं कि यादें साई की मानिंद मेरे साथ रहती हैं। ये सच है, ये सच है, इससे कब इनकार है मुझको। मैं अक्सर जागते दिन में भी आंखें मूंद लेती हूँ। कोई सूरत, कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई जायका या लम्स, टच जब जादू जगाता है तो मिनियातूर तस्वीरें अचानक बोलने लगती हैं, नाटक मंच सजता है। और कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, किसी टूटे हुए संदूक में रखे हुए बोसीदा मखतूते कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, कोई लिखाई पुरानी। कभी ऐसा भी हो, किसी टूटे हुए संदूक में रखे हुए बोसीदा मखतूते से कोई दास्तां तमसील बन जाती है। जी उठते हैं सब किरदार माजी के, सिपाही, बादशाह, खिलत, नवाजिर, रक्स और मौसीकी, किसी के पाँव में पायल, धनक आंचल, किसी शमशीर की बिजली, घनी बरसात की बदली, किसी बारादरी में राग दीपक का, किसी सहने गुलिस्ता में कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती है। ये जो राजस्थानी पेंटिंग है उसमें कदम के पेड़ों पर बहुत खूबसूरत है, कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, किसी गुमनाम कस्बे में कोई टूटी हुई मेहराब, खस्ता हाल डिहुड़ी की झलक मालूम कर देती है, यानी गायब हो जाते हैं, मालूम कर देती है। होटल, चाय खाने, बस के अड्डे, ढेर कूड़े के, कई सदियां गुजर जाती हैं सर से, और कोई गुमगश्ता शहर रफ्तगा बेदार होता है, कोई पुराना शहर जाग जाता है। इसी मंजर का हिस्सा बन के मैं तस्वीर हो जाती हूँ माजी में।
और एक मैं अक्सर आप ना आए वक्त पर कागज की नाव डाल देती हूँ। मैं अक्सर आप ना आए वक्त पर कागज की नाव डाल देती हूँ तो पानी अपना रास्ता मोड़ देता है। मैं जब चाहूँ सलोनी सांवली नटखट मधुर यादें उठा लाऊं लड़कपन के गिरौंदों से। मैं जब चाहूँ तो काली कोठरी हम सब के मन में होती है कहीं। मैं जब चाहूँ तो काली कोठरी में कैद रंजीदा पशेमा जख्म खुर्दा सातों यानी वक्त सातों बीते दिनों को प्यार से छूकर दिलासा दूं, खपक कर लोरियां दूं, खूब रोऊं, शांत हो जाऊं। ये माजी मेरा माजी है, ये माजी मेरा माजी है, फकत मेरे तसर्रुफ में है, यानी कि मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये माजी मेरा माजी है, फकत मेरे तसर्रुफ में है, मेरी मिल्कियत है, मेरा विरसा है, न मेरा हाल पर बस है, और आने वाला कल भी किसने देखा है। बहुत अदब की दुनिया का चमकता सितारा है अज़रा जी, और आपने बहुत तवील सफ़र तय किया है। कोई एक ऐसी कसर, कोई अधूरी तमन्ना, कुछ भी अगर वह है तो वो क्या है? अधूरी तमन्ना कि मैं कोई ऐसी चीज दिख जाऊं जो लोग बाद में मेरे भी याद रखें, ऐसा कोई तमन्ना। बस मेरे बच्चे नहीं है तो वो कसक तमन्ना तो है, लेकिन कसक नहीं कि मैंने सारी दुनिया के बच्चों को अपनाया हुआ है, अपने घर वालों को तो है ही, और मैं बच्चों के लिए हमेशा काम किया। हमारी एक एनजीओ है पॉकेट फुल ऑफ सनशाइन, तो उसमें जो काम करने वाली औरतें बेचारी घरों में, और वो उनके बच्चे के लिए डे केयर खोला है। तो बच्चे तो सारी दुनिया के अपने बच्चे हैं, तो वो कोई हसरत भी है कि कोई ऐसा काम कर जाऊं, कुछ ऐसा लिख जाऊं जिसको पढ़ के। कल मुझे किसी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, कोई कहने लगी, मुझे मैं नहीं समझती थी, मैं ऐसी नज़में कहती हूँ, कहने कि जब मैं उदास होती हूँ, जब मैं वो होती हूँ तो मैं रेखता पर अज़रा नकवी की नज़में पढ़ लेती हूँ। मैं समझिए धन्य हो गई जी। मुझे लगा कि अगर मेरी किसी चीज से कोई अपने मन को शांति मिलती है तो इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। अवार्ड मिले ना मिले, मुशायरों में बुलाई जाऊं ना बुलाई जाऊं, मैं उस रेस में हुई नहीं जो आजकल मुशायरों की है। तो यही हसरत है कि कोई अच्छा काम कर जाऊं, और जैसे सुकून से अब रहती हूँ। सुकून तो है जिंदगी में, दुख होते हैं, देखती हूँ दुनिया क्या हो रही है। जैसी भी मैंने अभी एक गजल कही थी कि जैसी भी है ये दुनिया, रहना तो इसी में है। ये तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो एक नज़्म थी, एक पुराना गाना आपको याद होगा कि सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं। मुझे बड़ा अच्छा एक जमाने के ज़माने का था, तो वो मुझे और नींद ही नहीं आ रही थी। अब बुढ़ापे में नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, तो मैं ऐसी खेल गाता रहा। तो फिर मैंने कहा कि दिल, मैं सुना दूंगी जी जी, दिल तल्ख हकायक से को झुटलाए, तल्ख हकायक बिटर रियलिटीज, दिल तल्ख हकायक को झुटलाए तो सो जाऊं, कुछ याद की पुरवाई चल जाए तो सो जाऊं। इस रात के दामन में जुगनू है ना तारे हैं, इस रात के दामन में जुगनू है ना तारे हैं। बचपन की कोई लोरी याद आए तो सो जाऊं, जिसमें चंदा और तारों का जिक्र आता था। और जैसी भी है ये दुनिया, रहना तो इसी में है। जैसी भी है ये दुनिया, रहना तो इसी में है। माँ गोद में सर रख कर समझाए तो सो जाऊं। कहते हैं कि ख्वाबों में बिछड़े हुए मिलते हैं, कहते हैं कि ख्वाबों में बिछड़े हुए मिलते हैं। अब नींद परी आकर समझाए तो सो जाओ। परियां सिर्फ बचपन में नहीं, अब वही बचपन में याद करके शायद नींद आई गई हो उस तरह। उर्दू शब्दों का गुलदस्ता, आपकी ये पुस्तक इज़्रा हुई थी कुछ दिन पहले जी। तो मैं बहुत मुतासिर हुई उससे, ये सोचकर कि अब मैं जल्दी से उर्दू के सारे शब्द हाँ बिल्कुल यूज कर, तो उसके बारे में प्राउड ऑफ इट। मैं जब से रेफ्ता के साथ जुड़ी हूँ, मैं रेफ्ता के साथ अब मैंने बहुत काम कर लिया। 6 सालों से आई थिंक आप ट्रांसलेशन भी अब कर रही हैं। ट्रांसलेशन तो मैं भी करती हूँ नहीं,
मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट लिखती हूँ जी। और मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ और मैं डिक्शनरी पे काम कर रही हूँ। जी। उनकी एक जब से मैंने डिक्शनरी पे काम करना शुरू किया है, मैं लफ्ज़ों में खो गई हूँ, एक और ही दुनिया है। तो वो डिक्शनरी जो है ना, वो एक क्लिक पे, इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली डिक्शनरी, जिसमें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में उस लफ्ज़ के मायने आते हैं, कोई शेर भी दे देते हैं। तो मैं उसके लिए ऑडियो और वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब पे होते हैं, कोई लफ्ज़ लेके और उसको मैं बताती हूँ कि इस तरह इस्तेमाल होता है, इस तरह। तो जब मैंने ये किया तो मुझसे कहा गया कि आप एक वो किताब, जब कोविड में घर बैठे थे, उस जमाने में ये किताब लिखी गई इतनी मोटी के उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत इनकी मदर टंग है वो भी नहीं पढ़ रहे हैं जी। लेकिन उर्दू कल्चर, उर्दू जबान वो आप सब में रची बसी है कहीं ना कहीं। तो उसको ज़्यादातर आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, उर्दू शायरी का जिक्र आता है कि शायरी में इस वर्ड के मानी ये है, तो हिजर के मानी ये है, तो विसाल के मानी ये है। नो, दैट्स नॉट ओनली उर्दू। तो चैप्टर वाइज हमने किया है कि शायरी की ज़बान तो छोड़ो है ही वो, इसके बाद घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं, अदालत में इस्तेमाल होती हैं, बाजार में कौन कौन से लफ्ज़ हैं कि जो उर्दू के हैं वो अपना रूप कैसे बदलते हैं। जैसे बाजार है तो खौंचा भी आपको पता होगा, खौंचा भी बोलते हैं, दुकानदार भी बोलते हैं, रेसगाड़ी छुट्टे को कहते थे, अब लोग भूल जाते हैं। और ये सब चीज़ें थी। तो जैसे मगर जब लफ्ज़ बाजार से बाजारी बन जाता है जी, तो इसके कुछ और मानी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने रिलेशनशिप करके और आपने इसका टाइटल कितना यूनिक चुना है, उर्दू शब्दों का गुलदस्ता। यानी कि उर्दू लेकिन लफ्जों का गुलदस्ता नहीं, ये शब्दों का गुलदस्ता। देखिए, हम जो जबान बोल रहे हैं, हम सब लोग ऐसी ही मिक्सचर जबान बोल रहे हैं और यही हकीकत है। तो कोई इतने ज्यादा कि भाई इतना शुद्ध बोलो कि कोई लफ्ज अंग्रेजी का ना आए, बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली बात यह है कि बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। शायरी कर लो, शायरी में भी कोई लफ्ज ऐसे ढूंढ के लाती हूँ मैं कि जो मुझे नहीं मिलता उर्दू में वो लफ्ज, तो मैं ढूंढ के हिंदी का ढूंढती नहीं हूँ, खुद आ जाता है, क्योंकि हम इसी माहौल में पले बड़े हैं ना। पहले कहते हैं ना, पहले हम लफ्जों के पीछे भागते हैं और जब हम उनको जीत लेते हैं तो वो हमारे पीछे भागते हैं। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ लफ्ज बने ऐसे कि मैंने एक नज़्म गई थी शुरू के, उस आखिर में था कि मुझको खुदा कुछ ऐसा वरदान बताकर लफ्जों को आईना कर दे, बस सामने से कुछ दिखे तो वो आईने होते हैं लफ्ज। भाई लफ्ज तो बहुत तिलिस्मी चीज़ है, सच्ची बात है ये तो इसमें जैसे लोग समझते हैं कि उर्दू कहते हैं उर्दू इश्क व मोहब्बत की ज़बान है। अरे इश्क मोहब्बत की भी मैंने एक चैप्टर लिया है, उर्दू में बुरा भला कैसे कहते हैं वो कौन से वर्ड्स है वो भी। तो वो सब चीज़ें हैं, घर में कपड़ों के नाम, कपड़ों के शेरवानी, विश्वास कहाँ से आया, किस तरह का लिबास होता है, गरारा, एक गरारे आप करते भी हैं और एक गरारा पहनते हैं, बताइए क्यों है ये। मैंने बहुत मैंने कहा ये क्या बात हुई कि भाई इस गरारे में गरारा क्या है। तो देखिए, गरारे का एक मतलब लिखा था लहराना, गले में पानी आप लहराते हैं और गरारा पहनते हैं तो वो भी लहराता है। तो बड़ी अजीब अजीब चीजें मेरे सामने आ रही थी और मुझे खोज लग जाती है एक लफ्ज की आजकल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे बहुत, और इतना इसको पजीराई कहते हैं, इसको अच्छी तरह से लोग पढ़ रहे हैं और वह तारीफ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये रेख्ता ने मुझसे लिखवाई। कई दफा उन्होंने कहा नहीं इसको और यूं करो, मुझे गुस्सा भी आता था। फिर बीच में उन्होंने किसी और को कहा इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने कहा ये किताब है, मेरे नाम मत लिखना, ये नहीं है मेरी किताब। तो खैर वो लिसन टू मी, जो मैंने लिखा था वो छपी है। आपकी इंटरव्यूज मैंने देखी, आपकी कॉन्वर्सेशन गुफ्तगू देखी, उसमें आपने लव मैरिज, हाँ, और नहीं मेरा प्रश्न है, लव मैरिज तो आपने की, लेकिन इश्क पर आपने कविताएं कम की। देखिए, एक तो हमारे यहाँ बात थी कि हमारे लोगों का घर का माहौल ऐसा था कि लड़कियां इश्क मोहब्बत की बातें अपने बड़ों भाइयों अब्बाओं के सामने नहीं करती थी। वैसे तो मैं बहुत आउटगोइंग थी, मेरे अब्बा मुझे बिल्कुल कैंप्स में भेजते थे, लेकिन हम लोगों में झिझक थी। लेकिन कहीं है ऐसी बात नहीं है। ये वो जो नज़्म बता रही थी ना मैं आपको, जो कि मैंने BSc में केमिस्ट्री के पेपर के दिन भी थी, वो इश्क की थी, लेकिन तब तक इश्क फॉर्म में कौन किससे है क्या है वो नहीं था। एक टीनेजर लड़की कैसे सोचती है, मैं सुनाती हूँ जी। तुम मेरे वास्ते क्या हो मुझे मालूम नहीं, तुम मेरे वास्ते क्या हो मुझे मालूम नहीं, जब कभी कच्चे आंगन पे झुकी चांद की किरणों में हवा बहती है, नीम की शाखों में लहराती है, आम के बौर की
बेले की चमेली की महक इस हसी रात को महकाती है, तो मुझे ऐसा गुमा होता है इस हसी जादू भरी रात का एहसास हो तुम। कभी महसूस ये होता है पहाड़ों की किसी वादी में देवदारों की घनी शाखों पर धीमे धीमे से बरसती हुई बरसात की आवाज हो तुम। कोई आवाज हो तुम, या कोई एहसास हो तुम, या कि खुद मेरा ही अनदेखा कोई ख्वाब हो तुम, या कि वो गहरी निगाहें कि जो पीछा मेरा हर सिमत करें। तुम मेरे वास्ते क्या हो मुझे मालूम नहीं, तुम मेरी सांस की सिर्फ ये जानती हूँ, तुम मेरी सांस की रफ्तार हो, जीने का सहारा तुम हो। वाह, बहुत खूबसूरत, मैंने इश्क के तसव्वुर से इश्क। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। आपने जब मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप कोई अधूरी तमन्ना, कोई कसक, तो आपने अपनी जो तमन्ना या कसक जो आपने कही, तो आप अजीब बात मैं आपको ये बताऊंगी, आपकी उस तमन्ना के ऊपर मैंने पहले से ही कुछ लिखा। अरे वाह, अब वो मैं क्या बात है। उसके बाद हम वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम अजरा मैम। सो दीवाने गालिब सदियों से सर का ताज है और रहेगा। जाहिर है। दीवाने गालिब सदियों से सर का ताज है और रहेगा, अब इंतजार है दीवाने अजरा भी होना चाहिए। शुक्रिया। दीवाने अजरा तो देखिए, दीवान आपको पता है किसे कहते हैं? सिर्फ संग्रह को नहीं कहते। बहुत जब सैकड़ों गजलें हो जाती हैं तो जो गजल जो है उसका लास्ट वर्ड अलिफ से होता है, तो वो सारी इकट्ठा की जाती हैं। बे जिसकी रदीफ में बे है वो बे की इकट्ठा, तब वो दीवान बनता है। तो हर जो मजमुआ शायरी का वो दीवान नहीं होता। मैं इतनी गजलें तो सारी उम्र नहीं कह पाऊंगी, तो बंदी बहुत आपकी मोहब्बत है जो आपने किया। देखिए, मुझे पहले से इंट्यूशन हो गया था, इसलिए मैंने वो लिख डाला। सो ऑडियंस, आप में से अगर कोई मैम से प्रश्न पूछना चाहता है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, सो आई कैन जस्ट हैंड ओवर द माइक टू यू। ओवर टू यू। आपको सुनने का तो मौका आज मिल रहा है, और YouTube पे और बढ़ते जो आपका जो ये वेबसाइट है उस पर बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप जिस किस्म से अल्फाज को एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत लुत्फ आ रहा है। आप देख रही हैं? वो मुझे बहुत देर से कर रही हूँ, काफी देर से देख रही हूँ। अरे वाह। और आपसे बहुत छोटे लेवल पे मैंने भी अपने मरहूम वालिद साहब से, समझिए, उर्दू का जो शौक है, जो मोहब्बत है, विरासत में मुझे भी मिली है। और मेरे नाना भी ज्ञानचंद तालिब नाम से लिखा करते थे। तो मुझे उर्दू का शौक जो मेरे फादर की वजह से था, और अजीब बात थी कि उन्होंने वो मदरसा जो मुझे सिखाने का है वो 4-5 साल की एज पे जब शुरू किया तो सर से ऊपर से निकल गया। बाद में मुझे मतलब वो महसूस होने लगा कि ये मेरे को वाकई में पसंद है। तो मैं लंबा नहीं बोलूंगी, मेरे को बहुत पसंद है आपकी एक जो नज़म है, जो तेरे दामन में आए तो हैं पर तेरे आशिक नहीं। वो नज़म तो वो मुझे पसंद है कि सब लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आपने वो एक शहर की जिंदगी के बारे में उसका वो चर्चा किया है। वो भी हिजरत की नज़म है। हम सब पंजाब से तो बहुत ही जाते हैं लोग, सारा मैं कहते वीजा एक्सपर्ट और वो स्टूडेंट वीजा, तो वो हम सभी लोग वहाँ कमाने के लिए जाते हैं, तो उस पे वो नज़म थी मेरी। अच्छा, आपने वो विदेश के बारे में लिखी? विदेश के बारे में लगा था ये कि आजकल के शहरों में जो माहौल है आपने उससे वाबस्ता वो लिखा है, मुझे ये समझ नहीं, वो मैंने कनाडा में लिखी थी, जो मैंने देखा था लोगों को। और हम जाते हैं, हमने बेचे तो हैं अपने इल्म हुनर सनदें, खुद को सौंपा नहीं। उसका तेरे दामन में आए तो हैं पर तेरे आशिक नहीं, तेरे आशिक नहीं। बहुत मैं यही देख रही थी नज़म, मुझे याद आ रही थी आज कि वो हर जगह लिखा हुआ है कि वीजा एक्सपर्ट और स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो। काश हमारे लोगों को ना जाना पड़ता। हम अपने देश तो में। मेरा सवाल तो पूछने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं पूछने लगी थी आपसे कि आपको कौन से शहर से वो उसकी वाबस्ता है, वो उसकी कनेक्टिविटी। पर ये आप तो विदेश जाने वाले बच्चों के बारे में लिखा। हाँ, ये हम सब अपने लिए लिखा थी। हम जब विदेश में इतने दिनों नहीं, लेकिन हमारा इमिग्रेशन था, मेरे हस्बैंड को था, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तब PhD की थी कि हिंदुस्तान आके मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। आज से 20 साल पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या था, तो उनको ये बहुत शौक था कि मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा। अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हिंदुस्तान हम वापस आए और खुश हैं। मैं 1 मिनट को भी रिग्रेट नहीं करती। अक्सर लोग कहते हैं अरे एक तुम में से एक को तो किसी को ले ही लेना चाहिए था सिटीजनशिप। नहीं, हमें हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती।
हम नहीं छोड़ना चाहते थे। आप YouTube पे कायम रहिए और हमेशा लिखती रहिए, यही दुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा आपने MSc करी है, केमिस्ट्री पढ़ते थे और जो आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कुछ नहीं था। तो वो क्या ये पेरेंट्स के कारण, क्योंकि हम सब गुजरे हुए हैं उससे एंड आई मेड श्योर कि मैं अपने बच्चों को उससे सच्ची बात है। पास दैट ऑन टू देम, बट हाँ, आपका यही तो देखो, हम मिडिल क्लास लोग थे, अब पता नहीं कैसे गलती से हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गई। तब इतना मुश्किल हाई स्कूल नहीं था, अब तो बच्चे कितना पढ़ते हैं, आ गई। तो हमारे फादर ने कहा कि तो मैंने साइंस के लिए आर्ट्स में PUC में फॉर्म भर दिया। प्रिंसिपल कॉलेज की मेरे अब्बा को जानती थी, तो मैंने कहा बेवकूफ़ लड़की है, उसको रहने दीजिए, तो साइंस में दाखिला दे जाती थी। साइंस में दाखिला ले लिया, PUC कर लिया, BSc कर लिया, और पढ़ने में बस सेकंड डिवीजन आ जाती थी। ड्रामे करती रहती थी, कैंपों में जाती थी, MSc भी कर लिया, MPhil भी सोचो। फिर शुक्र है मेरी शादी हो गई। मैं जल्दी से जाना चाहती थी कि छोड़ के अच्छा, मेरे हस्बैंड एकेडमिशियन थे, तो उन्होंने कहा मैं बाद में गई कनाडा, तो बोले कि मैंने एक प्रोफेसर से बात कर लिया, तुम PhD कर लेना। मैंने कहा फिर PhD का किस्सा। तो मैंने रात को नींद नहीं आई, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं दुआ मांग रही हूँ, मुझे वो रिजेक्ट कर दे। बोले मत जाओ, डोंट डू इट। तो उन्होंने फिर मैंने एजुकेशन में किया, विच आई लाइक। हमारे यही होता है कि भाई जॉब मिल जाएगी तो ये होगा। मैं भी गुजरी हूँ, आई एम श्योर काफी और भी गुजरे होंगे उससे, सही एंड आई होप वी ऑल चूज द बेटर पाथ। सही बात है, बेचारे बच्चों पर बहुत बुरा होता है। थैंक यू सो मच। Hello, Azra ma'am. Hi. Azra ma'am, I have observed that जो शायर लोग होते हैं, हाँ especially women, हाँ like I observed you today while you were reciting the poem on a woman who is suffering from Alzheimer's. I saw that your eyes were welled and you had a dim voice. विदा परवीन जी की इंटरव्यू सुने तो वो तो बेइंतहा रो रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं that sensitivity and emotions बहुत high level पे हैं। हम लोग के हाँ होते हैं, ये नेचुरल है। So थोड़ी बहुत पोइट्री मैं भी करती हूँ, I also feel that वो overwhelming होता है sometimes. हाँ। That you know observing things, that sensitivity is overwhelming. बिल्कुल। So sometimes क्या होता है कि मैं hermit बन जाती हूँ उस overwhelming emotion के बाद में। मेरे से नहीं होता कि दुनियादारी के साथ इंटरैक्ट करो, दिल तो बेइंतहा टूटेगा। सेंसिटिविटी है तो दिल तो टूटता तो है, लेकिन अगर हम उसी के अंदर लीन हो जाएंगे ना, तो दुनिया को ये संतुलन लफ्ज बना ना। एग्जैक्टली मैम, मैं इसी पे आ रही थी। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि हम कैसे वो बैलेंस मेंटेन करें अपनी दुनिया और दुनियादारी में? कैसे सॉन्ग रचाए अपनी दुनियादारी में, तो अंदर से लगता है कभी कभी यार क्या ड्रामा कर रही हूँ मैं। फिर नहीं, तो आप दूसरों के बारे में भी सोचिए कि ये आपको दूसरे आदमी के क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैं अपने किसी एक्ट से किसी को सुख पहुंचा सकती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है कि चलो मैंने किया, किसी के लबों पे मुस्कुराहट ला दी। अच्छा, एक शेर से सुना दूंगी कि हम सदा महफिलों में खुशबाश चेहरा लेके आए। भूल गई हूँ शेर। महफिलों में हम सदा खुशबाश चेहरा लेके आए, दिल की वीरानी को तन्हा अपने घर रहने दिया। तो वो अंदर तो जी इनका जवाब मैं देती हूँ। हाँ, तो जरूर आजरा मैम, आपसे तारुफ हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मेरे खुद के वालिद एक बहुत बड़े पोएट हैं, ब्रिज के शायर के नाम से मशहूर हैं। अच्छा। वो ही इज द ओनली मैन इन द वर्ल्ड टू चिजल स्टोन्स ऑन गालिब वर्सेस। He was stones in Ghalib verses are displayed in the Ghalib Academy, New Delhi. अच्छा, नाम क्या है आपके? ब्रजेंद्र सयाल। हाँ, ये नाम मैंने सुना सयाल साहब का। जी हाँ। उनकी we have 2 daughters. मेरे सिस्टर ऑल्सो वो सारे कसीदे पे मुरक्कब छुट्टाई की पेंटिंग्स करती थी, तो दे आर डिस्प्लेड इन गालिब एकेडमी। तो मेरे वालिद तो रहे नहीं, तो मैंने अभी रिस्टोर किया उनका सारा काम, जी, एंड इट्स स्टिल इन प्रोसेस।
तो उनका मैं जवाब अपने फादर के शेर से दूंगी। जी, शेर की महफिल है। रह रह के तूने वार किया भला किया, रह रह के तूने वार किया भला किया, मैं ही मचल मचल उठी मेरा कसूर था। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग के साथ बैठ के ये जो छोटी महफिलें होती है, सामने लोग बैठे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो बिल्कुल धन्य हो जाता है इंसान। मैडम जी, हर कामयाब आर्टिस्ट कलाकार के पीछे उसके उसकी कामयाबी में कोई इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जी, तो उर्दू में भी बड़े बड़े नाम हैं, उर्दू शायरी में गावत है भी, तकी भी, और बहुत ज़्यादा। तो आपको किसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस या इंस्पायर किया, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने जैसे कहा था ना कि मेरे घर में तो हर आदमी शायर है, कोई बैतबाजी हो रही है, घर में सब कजिन्स बैठ गए, वो शेर पढ़ रहा है, वो शेर पढ़ रहा है। और मुझे मेरी अम्मी ने बचपन से ही क्लासिक्स से इंट्रोड्यूस कराया। चाचा हैं तो वो गालिब की गज़लें गा रहे हैं, छोटी सी थी, सब पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो कानों में पड़ी हुई थी। तो इंस्पिरेशन तो मुझे उर्दू शायरी से ही मिला सारा। उर्दू शायरी हम लोग एक मजहबी चीज़ होती है, मजलिस होती है, शिया लोग जो करते हैं, उसमें मरसिये पढ़े जाते हैं, वो रागों में पढ़े जाते हैं, वो बहुत अच्छी उर्दू होती है। तो बचपन से हमने सुने, तो इंस्पिरेशन। और फिर जब हम कॉलेज में थे तो वो ज़माना था जब साहिर और फैज़ का बहुत वो होता चर्चा, तो हमने पूरी नज़में उनकी, मैं एक ज़माने में मुझे परछाइयाँ फैज़ उनकी साहिर की पूरी याद थी, बहुत सी नज़में याद हैं। तो साहिर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और फैज़ अहमद फैज़ की नज़में कहने वाले वो शायर कि जो जन सरोकार रखते हैं, जिनके यहाँ दुनिया की सरोकार की बातें हैं, जिनके यहाँ एहतजाज है, जिनके यहाँ प्रोटेस्ट है, जिनके यहाँ ख्वाब है एक आम आदमी के लिए, वो मुझे पसंद आते हैं। मैं एक थोड़ा सा, हाँ। वैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमफिल की यूनिवर्सिटी से। जी, तो उर्दू सीखा, पढ़ना भी, और जो रेखता जी शुरू किया, जो आपका वो उर्दू लड़ने वगैरह, जी तो पढ़ता हूँ जी। अच्छा, हिंदी लिटरेचर से भी हूँ जी। तो एक चीज़ मैंने ये देखी है कि उर्दू शायरी या नज़म या जो भी है, जितना भी मैंने पढ़ा, उसमें एक इशू को लोग प्रेडोमिनेंस दिया जाता है, as if that is the end of the world, आपने बोला था इश्क, ये हाँ, और भी ज़माने में मोहब्बत के सिवा और भी है, बस वो है। लेकिन ज़्यादा शायर जो नज़म वाले, वो ज़्यादा इश्क पे ही बोलते हैं। और दूसरी बात, वैसे तो चलो अभी पाकिस्तान ड्रामे अभी लोगों में, बहुत सब लोग, तो पाकिस्तान ड्रामों में मैंने देखा, सिवाय चलो उनकी हायर सोसाइटी, जो हायर सोसाइटी में है, वो सोसाइटी में दे टच वुमेन इश्यूज, द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड हाउ बीइंग स्टेटेड। और हायर सोसाइटी में सिवाय शादी, डिवोर्स और जैसे वो टीआरपी बढ़ाने को ना, उसने पकड़ लिया, ये क्यों व्हाई कांट दे व्हाई डू दे कैनवस। अब देखिए, जो आम लोग पाकिस्तान में बाकी प्रॉब्लम भी तो होंगी ना, है, जैसे उन्होंने वो एक फिल्म बनाई थी बोल, ट्रांसजेंडर्स पे, हर जगह भी एक पॉकेट्स हैं। अब हमारे जो सीरियल आते हैं, कि आपके ख्याल में यही होता है कि हमारी औरतें बैठी एक दूसरे के खिलाफ साजिश करती रहती हैं, और बहुएं जो है इतने बड़े बड़े हार पहन के खाने पकाती हैं? नहीं, हमारे प्रॉब्लम्स दूसरे हैं। अच्छे भी सीरियल एक दो आए थे कि एक लड़की अकेली, वो जल्दी खत्म हो गया वो सीरियल। उसका नाम क्या था? वो बॉम्बे जाती है, वो शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसका झांसी का ट्रेडिशनल फैमिली होती है, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट शी हैड, और इतने जल्दी खत्म कर दिया वो वाला सीरियल। वो चलते नहीं तो टीआरपी चाहिए भाई, तो इसलिए लड़ाई झगड़े साजिश चाहिए, यही पाकिस्तान और इंडिया यही होता है। तो लोगों को अपने आप से रिलेटेड लगते हैं, क्योंकि उनके वहाँ अंदर और अपने रोज देखिए, मैं ड्रामा देख रही हूँ, मुझे पता है बकवास है पाकिस्तान का, खामखा का इश्क मुर्शिद, लेकिन अब वो मुर्शिद लोग मुझसे पूछते हैं मुर्शिद का क्या, सब लोग शायद बहुत देख रहे हैं, लेकिन जब मैं थक जाती हूँ, अपने दिन में अकेली रहती हूँ, पूरा घर का भी देखना, वो करना बाहर, तो मैं इश्क मुर्शिद देखती हूँ। कम से कम जबान अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ है, तो यही सब टीवी में तो लोग यही देख रहे हैं। और अब हमारे यहाँ तो कितने चैनल्स, तो नेटफ्लिक्स, तो क्या
बड़ी अच्छी फिल्में बन रही Ma'am, हैं। we still have the choice with us. Don't watch. डोंट वॉच, मैं नहीं देखती अब सीरियल, स्टार प्लस में नहीं देखती। Not interesting. Otherwise, I found them interesting. कोई वजह ही है कि लोग देखते हैं। कभी तो टीआरपी We are all different. Different people watch हाँ different बिल्कुल। things. और सीरियसली नागन वाले, मैं हेयर ड्रेसर के पास गई बाल कटाने, तो दो लड़कियां ना इतनी सीरियसली कोई डिस्कस कर रही थी कोई सीरियल, वो तो नागन बन गई थी, वो तो ऐसा हुआ, वो तो सरप्राइज, मतलब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा है वो नागन। जी नागिन हिस्सा है उनकी जिंदगी का, क्योंकि सबके भीतर नागिन कहीं ना कहीं निकल आती इतनी है। सीरियसली डिस्कस कर रही थी। तो ये खूबसूरत शाम थी ये, और अजरा मैम से ये मुलाकात मुझे लगता है हमें हमेशा याद रहेगी। मुझे खुद आप लोगों से इस तरह के डिस्कशन कहाँ होते हैं ऐसे खुल के बिल्कुल, वरना वो कोई प्रेसिडेंट बोलता है तो कोई पहले वो कुछ होता है प्रोटोकॉल है। अच्छा, लिखने वालों के लिए अजरा मैम, लिखने वालों के लिए एक मैसेज तो बनता है, वो जरूर दीजिए प्लीज। अरे क्या लिखने वाले, मुझे तो सब लोग कहते हैं कि तुम तो रेखता की नजर हो गई, आजकल अपना कुछ नहीं लिखती। अभी मैं अपनी मेमोइर्स लिख रही हूँ, उसकी बहुत फरमाइश है। लिखने वालों के लिए ये लिखिए, अगर आपके मन के अंदर है तो उसको उस वक्त ही लिख लीजिए। जी, जैसे मेरा इसमें नोट पैड है एक ऐप, मैं कुछ भी रात को होता है तो लिख लेती हूँ उसके अंदर, या रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि एक चेहरा मेरा कि कोई भी मौसम में दिल हो उसे गजल कर लो, न जाने फिर ये तबीयत रवा रहे ना रहे। तो जो भी आपको लग रहा है कि बेमानी बात है, इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं लिख लीजिए, लिखिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखिए। और उर्दू और हिंदी के शब्दों का अगर मिक्सचर कर दिया जाए तो क्या बुरी बात है? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जैसे आजकल लफ्ज शिद्दत बहुत गलत भी इस्तेमाल हो रहा है, शिद्दत इज इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा, कि मैं तुम्हें शिद्दत से चाहता हूँ, लेकिन उसने बहुत शिद्दत से खाना पकाया। अच्छा, अरे शिद्दत का ये मतलब नहीं कि मेहनत, तो अब ये भी होता है कि खुलासा लफ्ज है, ये मैंने लिखा इस शब्दों के गुलदस्ते में। खुलासे का मतलब है जिस शॉर्ट करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना किसी का। और अब किसी चीज को एक्सप्लेनिंग को उन्होंने इस बात का खुलासा किया, नहीं, नॉट एक्सप्लेनेशन, इट्स ऑन द अदर वे, ऑन द कंट्रेरी इट इज जिस्ट। Thank you so very much, Azra ma'am. Thank you so much. दोस्तों एंड आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं मिसेस बख्शी को, हु इज लीडिंग एजुकेशनिस्ट एंड ओनर ऑफ सेठ कबीर, उनसे उनको अनुरोध करती हूँ कि वो लेखिका अजरा नजवी जी और संवादी शेल विज जी की गुजरात के अजरक चुन्नी से सम्मानित करें, के लिए मंच पर आए। Excuse me, ma'am, please, एक फोटो कर दीजिए। हाँ देखिए आपको for steering us through such a fantastic conversation. I thank our distinguished hospitality partner, Taj Chandigarh, Associate Rekta Foundation, and esteemed patron Sri Cement Limited for the support. Thanks to the wonderful audience for being so engaging and interactive. Your time and presence made this evening truly special. The Prabha Khaitan Foundation promotes interstate cultural appreciation to foster unity and appreciation of the rich cultural heritage across India's diverse states. Ajrak, which is a symbolic of Sindhi culture and traditions, is a unique form of block printing practiced by artisans of the Kutch region. Block printing wooden blocks are used to create lovely designs and patterns. The uniqueness of Ajrak is that it is a block printed on both sides with similar depth and color, making the cloth reversible and ensuring a perfect match of balance and order. Natural minerals and vegetable dyes are generally used for making Ajrak clothes. Goodbye and good night to all. Please don't forget to pick up your copy
and it can be autographed by Azra ji personally before you leave. Thank you so much. Thank you so much. जैसे कहते थे इंग्लिश में कि all the beautiful people were there certainly. Thank you.